أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. صحافت سے وابستہ ہمارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ یہاں میرے ساتھ قائد تحریک جناب سعید علی شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں، جن کے ہمراہ تحریک آزادی کی رہنما جناب شبیر احمد شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور انجمن شریف شیعہ سے وابستہ اس کے سربراہ محترم آغا حسن سعید الموسوی الصفی صاحب بھی موجود ہیں. لیکن مجھے آج کے اس عظیم دن پر، آج کا دن ایک خاص دن، عظیم دن، کیونکہ آج کے دن تحریک آزادی کے صحیح قائدین، ورثاء، ہسٹوریکل ریزسٹنس فورسز آپ کے سامنے موجود ہیں. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آغاز کے طور پر کچھ الفاظ کہنا چاہوں گا. چونکہ آپ سب کو معلوم ہے ہماری تحریک کتنی عظیم تحریک ہے. اس تحریک میں لاکھوں شہداء کا خون ہے، 10,000 سے زائد یہاں کے نوجوانوں کو دن داڑے گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا، ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، یہاں کی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا، جلایا گیا. آج بھی یہ ریاست جموں کشمیر کی کوہبیاں گواہ کہ ہمارے نوجوانوں کی سکلٹن آج بھی وہاں موجود ہے، جو بے گورو کفن وہاں آج بھی. ہندوستان کی جارحیت 47 سے لے کر آج تک جاری ہے. ہندوستان قوت کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے کشمیریوں کا حق آزادی سلب کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج ایک تاریخی فیصلے کا ہم آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہماری تحریک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تحریک آزادی کی ترجمانی اور آبیاری فکری بنیادوں پر ہونی چاہیے، اور اس کے اپنے تاریخی پس منظر میں ہونی چاہیے. کیونکہ کشمیر از این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ. یہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طریقے سے ہندوستان کبھی کبھار اس کو کوئی کمیونل مومنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، کوئی لوکلائزڈ مسئلے کے طور پر پیش کر رہا ہے، بٹ اٹس این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ. یہ دنیا بھی جانتی ہے اور ہندوستان کو بھی یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. اور خاص طور آج 21ویں صدی میں ریاست جموں کشمیر میں ہمارا کلچر، ہمارا تہذیب، یعنی اسلامی تشخص جو ہے that's being threatened. اس اسلامی تشخص ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثریتی آبادی چونکہ یہاں ریاست جموں کشمیر کے مسلمان ہیں، تو اسلامی تشخص کو ہمیں ہر صورت میں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اور دشمن تیزی کے ساتھ ایگریشن کر رہا ہے، سو اٹ نیڈس پروٹیکشن. تو ہم سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب سے بہتر کون شخصیت ہو سکتی ہے جو اسلامی فکر، اسلامی تشخص کی ترجمانی، آبیاری اور اس کو تحفظ دے سکتی ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی اور شخصیت اس کی ترجمانی گیلانی صاحب سے بہتر کر سکتی ہے. اور جو بھی آزادی پسند ہماری قوم ہے، ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ایفیلیشن، چاہے وہ پوچھ میں رہتے ہیں، رجوری میں رہتے ہیں، چناب ویلی میں رہتے ہیں، ڈوڈا میں رہتے ہیں، کشتواڑ میں رہتے ہیں، کرنا میں، کپواڑہ میں، بارہ مولہ، اسلام آباد، پلوامہ، شپین اور اس سری نگر میں، سب کی آرزوئیں اس تحریک سے وابستہ ہے. تمام لوگوں نے بلا امتیازی مسلک اور تنظیم اس تحریک کا ساتھ دیا. لیکن کبھی کبھار جو بکھراؤ ہوا قیادت میں، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا،
تو اس سلسلے میں جو بھی حقیقی آزادی پسند قیادت ہے ان سبوں نے کوشش کی کہ وہ اقبال کے ایک اشعار بھی ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، کوئی ادھر ڈوبا کوئی ادھر ڈوبے ادھر نکلی، ادھر ڈوبے ادھر نکلی، تو اسی کی مصداق ہم نے کوشش کی 2008 میں بھی کہ آزادی پسند قیادت کے درمیان کوارڈینیشن ہو، تال میل ہو، اشتراک عمل ہو۔ اس کے بعد میں 2014 میں جناب سعید علی شاہ گیلانی صاحب نے ایک ٹیم مقرر کی جو سبھی آزادی پسندوں کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں آج اس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ پچھلے 2014 کے اگست میں گیلانی صاحب نے ایک ٹیم جو منتخب کی، اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اسی حوالے سے کہ آزادی پسندوں کو ہندوستان کی جارحیت کے خلاف یہاں یکجٹ ہو کر ایک جوائنٹ ریسپانس دینا ہوگا ہندوستان کی جارحیت کے خلاف۔ لیکن میٹنگ کے بعد سومی قسمت کہ پھر سیلاب نے پوری ریاست کو آگیر لیا اور اس سے جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ طوالت میں پڑا، اور اس کے بعد میں اس سال پھر کئی میٹنگیں ہوئی جو انہوں نے ایک ٹیم منتخب کی، ہم نے بھی ایک ٹیم یہاں سے منتخب کی، خوش قسمتی کے ساتھ میں اس میٹنگ میں شامل تھا۔ اس کے بعد میں بھی کئی میٹنگوں کا انعقاد ہوا جس میں نفس نفیس محترم سعید شاہ گیلانی صاحب کی قیادت میں وہ نشست ہوئی، اس میں شاہ صاحب بھی تھے، محترم آغا صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس وقت عالم دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو ان اٹس ہسٹوریکل اینڈ ان اٹس ریئل پرسپیکٹیو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کے اس ایگریشن کے خلاف، اس جارحیت کے خلاف یہاں بھی ایک جوائنٹ پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ آج کے دن ہم نے فیصلہ جو کیا ہے کہ ہم مشترکہ طور پر جناب سعید علی شاہ گیلانی صاحب کی قیادت میں حریت کانفرنس کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے تحریک کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ سرعت کے ساتھ بڑھائیں گے، جوش اور ولولے کے ساتھ بڑھائیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں جو ہماری اگر کوئی جو باقی بھی ہمارے ساتھی اس پلیٹ فارم سے باہر ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے۔ لیٹس آل جوائن ہینڈز ٹوگیدر اگینسٹ انڈین ایگریشن، اگینسٹ انڈین اوپریسی، کیونکہ یہ عوام کا بھی مطالبہ رہا ہے۔ پچھلے کئی 2008 میں بھی لوگ آئے ہمارے ساتھ، ہمارے کارکن آئے ہمارے ساتھ، جو قربانیاں دے رہے، جو ریئل اثاثہ ہمارا ہے، ریئل ایسٹ ہے، یہ ان کی آرزویں، ان کی تمنائیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی تمناؤں کے عین مطابق آج ہمیں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کل جماعتی حریت کانفرنس سعید علی شاہ گیلانی کی سرپرستی میں اس قوم کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں اس سے آگے میں چاہتا ہوں کہ مناسب ہوگا کہ ہمارے سینئر قائد جو ہے محترم سید شبیر احمد شاہ صاحب وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب شبیر صاحب۔ جس طرح ہم صاحب نے تفصیل سے آپ کے سامنے خیالات کے اظہار کیا، اس کا میں دلائل تعلق کرتا ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اور تحریک کے وسیع تر مفاد کے لیے جو قائد حریت علامہ سعید علی گیلانی صاحب کی قیادت میں اتحادی فورم کام کر رہا ہے، اس میں اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد محترم جناب گیلانی صاحب،
जनाब आयदौद साहब, जनाब नईम साहब, बुजुर्गों, जवानों, साथी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना नईम साहब के हवाले से कि ये कोशिश चल रही थी 2008 19 जून से, 19 जून का दिन था। बाहर से भी आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, कौम की भी यही चाहत थी कि आज़ादी पसंद लोगों के दरमियान इत्तेहाद हो। अल्लाह का करम था कि 6.5 घंटे के बाद यहाँ इसी जगह पे मोहतरम गिलानी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और इत्तेहाद के हवाले से जो शुरुआत हुई थी, लेकिन आप जानते ही हैं कि उसके बाद आज़ादी पसंद लोगों की गिरफ्तारियाँ अमल में आई और गिरफ्तारियों के बाद काफ़ी देर के बाद जब जेलों से बाहर आए तो हमने फिर रब्ता किया और एक शुरुआत फिर हमने की मोहतरम गिलानी साहब की क़यादत वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन हैं उनके साथ। और 2014 7 सितंबर का दिन था जब हम इस नतीजे पे पहुँचे। पहले हमारी कोऑर्डिनेशन काफ़ी देर से थी, उसके बाद हमने ये महसूस किया कि कौम की चाहत है, कौम चाहता है कि आज़ादी पसंद लोग इस पुणे तारीख को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है, जिसमें काफ़ी इंसानों का नजराना हमने दे दिया है 5 लाख के करीब, कि आज़ादी पसंद क़यादत एक ही जगह जमा हो जाए। अल्लाह का करना था, अल्लाह का करम था, मोहतरम गिलानी साहब की काउशों की वजह से और उनकी साथी जो उनकी टीम है उनकी कोशिशों की वजह से आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम सबको दिल मिला के, जहन मिला के, हाथ से हाथ मिला के इस तारीख को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए। और दुनिया जहाँ भी हमारे खैर खा हैं दुनिया भर में, उनकी भी यही चाहत थी कि गिलानी साहब की क़यादत में आज़ादी पसंद क़यादत सभी एक हो जाए। जैसे नईम साहब ने भी फरमाया, मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा, जो आइन है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, जिसमें बड़ा वाज़ेह है मसले कश्मीर के हवाले से औक़ान मुतहदा के करारदाद या रिजल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डायलॉग बिटवीन 3 पार्टीज, जिसमें बुनियादी फरीक की हैसियत जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो उसमें कहीं हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो हमने समझा कि हम जो खानों में बढ़ के काम कर रहे हैं, क्यों ना यूनिफाइड वॉइस लेके दुनिया के सामने हम आ जाए और जो भी आज़ादी पसंद लोग इस प्रेम्बल के साथ इत्तेफाक करते हैं उनके लिए हमेशा हम बरसर चश्म होंगे। तो हमारी ये कोशिश है, क्योंकि वहाँ से सब हमारे खिलाफ मुतहद हो रहे हैं। नागपुर आप ले लीजिए, संघ परिवार को आप ले लीजिए, बीजेपी को ले लीजिए और कश्मीर मिशन का जो उन्होंने ऐलान किया है कश्मीर के हवाले से, तो उस वक्त हम ये समझने लगे कि वक्त की ज़रूरत है, इन चैलेंजों का मुकाबला हम इज्तिमाई तौर कर सकते हैं। और आज हम इस जगह पे पहुँचे कि हमने हर महज पे, सियासी महज पे, डिप्लोमेटिक महज पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसके चेयरमैन मोहतरम गिलानी साहब हैं क़यादत में, इस तारीख को चलाना है। हर महज पे हमने सपोर्ट हासिल करना है और जो हमारे लोग हैं बाहर की दुनिया में, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं सियासी सफारती सतह पे, वो भी इस मसले को उजागर करने के लिए अपना रोल निभा रहे हैं और एक तालमेल होगा इंशाअल्लाह। और इसमें मैं ये बात भी ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि बरादर मुल्क पाकिस्तान जो हमारा मोहसिन है, जिन्हें 68 साल से हमारा साथ नहीं छोड़ा है और जिन्हें सफारती सतह पे, सियासी सतह पे, इखलाकी सतह पे हमारी सपोर्ट आज भी जारी रखी है और हर इंटरनेशनल फोरम में इस मसले को उजागर करने के लिए कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बात करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने भी हमें तनहा नहीं छोड़ा है। हम पाकिस्तान से ये उम्मीद करेंगे कि वो सफारती सतह पे, डिप्लोमेटिक सतह पे और तेज़ी लाए, अवेयरनेस कैंपेन चलाए दुनिया भर में, ताकि जो यहाँ जुल्म हो रहा है, जातियाँ हो रही हैं और जो यहाँ के बीजेपी या यहाँ लोकल जो इलाकाई जमातें हैं, पीडीपी को ले लीजिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लीजिए, सभी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इक़्तिदार के लिए इन्होंने अपने आप को सब कुछ बेच डाला, तो हम इन सब का मुकाबला जब तभी कर सके जब हम जॉइंटली करें, यूनिफाइड वॉइस लेके चले, क्योंकि हमारी तारीख हक पर मबनी है
हम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद इरादे की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह फतह ज़रूर हमारी होगी, कामयाबी हमारी ज़रूर होगी। उसमें कलम का भी एक अजीम रोल होता है। कलम की काट तलवार की काट से भी बड़ी तेज होती है, और कलम का इस्तेमाल जानतदारी, ईमानदारी और अमनदारी से किया जाए। आखिर पे मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से भी, हम हिंदुस्तानी अवाम के दुश्मन नहीं हैं। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है जिसने हमारा हक सल्ब किया है, जो बारूद और बंदूक के बलबूते पे यहाँ हुकूमत कर रहा है। हम समझते हैं कि अगर मसले कश्मीर बातचीत के जरिए से हल हो जाता है तो हज़ारों मसाइल हिंदुस्तान के भी खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इनकी जो दूरियां हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, वो भी बिकॉज ऑफ कश्मीर इज़ ए कोर इशू, और जब तक कश्मीर को एड्रेस न किया जाए तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। उम्मीदों पे ये दुनिया कायम है और हमारा ईमान है कि हक की ताकत है, ताकत हक नहीं है। तो वक्त काफ़ी है, हमने बहुत काम करना है, और पता नहीं हम सबको कब किसको वापसी का बुलावा आ जाता है। जाने से पहले हम सबको अपना रोल जानतदारी, ईमानदारी और अमनदारी से निभाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम शाह साहब, मोहतरम आगा साहब, मोहतरम नईम साहब, और मेरे दफ्तर मगर मीडिया से वाबस्ता हमारे सरफरोश नौजवान, मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ आपको सलामी अक़ीदत पेश करता हूँ। आज की इस तकरीब के बारे में आपको मोहतरम नईम साहब, मोहतरम शबीर साहब और मोहतरम मकाम जनाब आगा साहब ने इसका पस मंज़र बताया कि आज की ये तकरीब, इसका क्या पस मंज़र था और ये तकरीब किस पस मंज़र के नतीजे में मुनक़िद हो रही है। मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ उन इकाइयों का भी जो इससे पहले हमारे साथ वाबस्ता हुई हैं और आज जो ये लीडर हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, इनका हम दिल की अमीर गहराइयों के साथ खैर मक़दम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये क़यादत और ये जो आवाम के जज्बात के तर्जुमान हज़रात हैं, ये यकसुई के साथ, दिलजोई के साथ और अल्लाह ताला पर भरोसा और यकीन रखते हुए इस मज़लूम कौम की के जज्बात की तर्जुमानी करते रहेंगे और यकीन के साथ कि हम इंशाअल्लाह भारत के जबरी और फौजी कब्ज़े से आज़ाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। यकीन महकम, अमल पैगम, मोहब्बत फातिह आदम। यकीन महकम, अमल पैगम, मोहब्बत फातिह आदम। जहाद ज़िंदगानी में यह हैं मर्दों की शमशीरें, यही हमारी शमशीरें हैं और इनको इस्तेमाल में लाकर हम इंशाअल्लाह भारत के जबरी कब्ज़े से यकीनन आज़ादी हासिल करेंगे। आपको बताया गया कि हमारे पास बड़े चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस का हमने मुकाबला करना है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़हनी तौर भी और फिक्री तौर भी, नज़रियाती तौर भी और जिस्मानी तौर भी यकजा हो जाए और हम बाकी हज़रात के लिए भी इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारे दरवाज़े खुले हैं और हमारा दिल
वाह है, वाह बिल्कुल खुला हुआ है इस्तेक़बाल के लिए। जो हज़रात भी हमारे जो मीसाक हमारा बना हुआ है उस पर एतमाद करके तशरीफ़ आवर होंगे, उनका हम खैर मक़दम करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपसे बता रहा था कि चैलेंजेस हमारे क्या हैं। चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि भारत ने गुज़श्ता 77 साल से फ़ौज के बलबूते पर जम्मू कश्मीर के पूरे खित्ते को अपने कब्ज़े में ले रखा है, ऑक्यूपेशन में ले रखा है, और उसके ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर के अवाम मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं 47 से लेकर आज तक, और आइंदा भी इंशाअल्लाह जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। आपको बताया गया कि इस कौम ने अजीम और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, और इन कुर्बानियों की हर हाल में रखवाली होनी चाहिए, हिफाजत होनी चाहिए। इसकी ज़िम्मेदारी क़यादत पर भी आयद होती है और कौम पर भी आयद होती है, तो इन कुर्बानियों की हिफाजत करें। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिनको सड़कों के एवज़ बेचा नहीं जा सकता है। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिनको डेली वेजरी के एवज़ बेचा नहीं जा सकता है। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिनको फौज में भर्ती होकर या पुलिस में भर्ती होकर या किसी और जगह डेली वेजरी और मुलाजमत हासिल करके इन अजीम और बेमिसाल कुर्बानियों को बेचा नहीं जा सकता है। ये अजीम कुर्बानियाँ हैं, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बजा तौर फरमाया है, इन शहीदों की दियत अहले कलीसिया से न मांग, कद्र कीमत में खून जिनका हरम से बढ़कर। ये जो तुम मुक़द्दस खून को बेच रहे हो और उन लोगों के हाथों इस खून को फरोख्त कर रहे हो सड़कों के एवज़, मुराद के एवज़ और दूसरी चीज़ों के एवज़, ये खून बड़ा मुक़द्दस खून है। ये तो हर पाक से भी ज़्यादा कीमती और ज़्यादा मुक़द्दस है। इसको किसी भी हाल में बेचा नहीं जाना चाहिए। हम अपनी कौम से यही दर्दमंदाना अपील करेंगे कि आप अपनी कुर्बानियों की हिफाजत करें, अपनी कुर्बानियाँ उनको पेश नज़र रख कर आप ये अहद करें इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी, कि जब तक हम आज़ाद ना हो जाएंगे भारत के जबरी कब्ज़े से, उस वक़्त तक हम मुराआत के एवज़ अपने शुहदा का मुक़द्दस खून फरोख्त नहीं करेंगे। मैं आपकी वसातत से और अपने इन हज़रात जो हमारे साथ वाबस्ता हो चुके हैं, पहले भी थे, लेकिन अब एक तंजीमी और एक अमली एक सूरत हाल जो बनी है, ये बहरहाल पहले के मुकाबले में एक मुंतखब चीज़ है और एक बहुत ही वो ज़रूरत पूरी हो रही है जिसका कौम भी हर मौके पे इजहार कर रहे थे। इस हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मसला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम ऑक्यूपेशन से आज़ादी हासिल करें। ये जो डेवलपमेंट वर्कर्स हैं, ये जो हमें फ़रोग़ दिया जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है, हमको फिसलाया जा रहा है और हमको ये ख़रीदा जा रहा है डेवलपमेंट के एवज़। ये गुलाम कौम के लिए डेवलपमेंट पहली हैसियत नहीं रखती है, ये सानवी हैसियत है। सबसे अवलीन जो तकाज़ा है, अवलीन मुतालबा जो गुलाम कौम का होना चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी होना चाहिए। डेवलपमेंट का कोई इसमें अवसर नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आज भी मैं दोहराऊंगा कि अगर भारत हमारी सड़कों पर सोना भी बिछाए, लेकिन फिर भी वो हमारे एक शहीद के खून की कीमत अदा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई ये डेवलपमेंट्स का जो हमें नशा पिलाया जा रहा है, हमें शराब पिलाई जा रही है, वह डेवलपमेंट हम करेंगे, सड़कें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये गुलाम कौम के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। गुलाम कौम के लिए सिर्फ एक ही नुक्ता है, एक ही मरकज़ होना चाहिए, उनका एक ही गोल होना चाहिए कि हम ऑक्यूपेशन से आज़ादी हासिल करें। उसके बाद कौमों की तामीर जो होती है, कौमों की जो तरक्की होती है,
कौमों के जो मसाइल होते हैं वो खुद ब खुद हल हो जाते हैं जब कोई कौम आज़ाद हो जाती है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा आज़ादी की तरफ तवज्जो देना है और सबसे ज़्यादा इस बात की तरफ तवज्जो देना है कि जो लोग हमारी गुलामी के जिम्मेदार हैं, मैंने बार बार कहा है, हमारी गुलामी के जिम्मेदार वो लोग हैं जो इक़्तिदार के इवज़ कौम को बेच रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे पीसी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, वो उन सब ने अपनी कौम को बेचा है कुर्सियों के इवज़, इक़्तिदार के इवज़, जाह व हशमत के इवज़ और अपने मादी मफादात के इवज़। इसलिए हमें उनका साथ किसी भी हाल में हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। उनका साथ देना अपने मुक़द्दस काज के साथ गद्दारी है। उनका साथ देना अपने मुक़द्दस कुर्बानियों के साथ, शहदा के मुक़द्दस खून के साथ बेवफाई बरतना है। इसलिए मैं अपनी मज़लूम कौम से दर्दमंदाना अपील करूँगा कि इस अपने मुक़द्दस शहदा के खून को इन डेवलपमेंट वर्कर्स या इन पार्टियों के एवज़ फरोख्त न करिए। आप सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके और यकीन रखें कि हम सदाकत पर है। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद कोई फ़िरका परस्ती नहीं है, हिंदुस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हमारी जद्दोजहद मबनी बर सदाकत है। हमारी जद्दोजहद हक की जद्दोजहद है। और ये जो मार्का आराई है हिंदुस्तान के साथ, ये झूठ और जबर के खिलाफ जद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का स्टैंड जम्मू कश्मीर के बारे में बेबुनियाद है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। वो सिर्फ ताकत के बलबूते पे, बंदूक के बलबूते पे, फौज के बलबूते पे और पुलिस के बलबूते पे हमारे सीनों पर मोम दल रहे हैं, हमारी इज्जतें छीन रहे हैं, हमारी असमतें छीन रहे हैं, हमारे जवानों को तख्तेदार पर लटका रहे हैं। जिंदा मिसाल है कि हर जेल में जो हमारे मकबूल साहब हैं और अफजल साहब हैं, वो आज तहार की सरजमीन पे वहाँ आराम फरमा है। वो कुर्बानियाँ हम फरामोश करें, ये चीज़ हम सबसे मुमकिन नहीं हो सकती। और ये चीज़ ये हमको बख्शा नहीं जाएगा अल्लाह की बारगाह में भी और अवाम की बारगाह में भी, कि जब हम शहदा के साथ गद्दारी करेंगे और शहदा के खून को उसकी तिजारत करेंगे। इसलिए हमारी जद्दोजहद जो है मबनी पर सदाकत है। पाकिस्तान, जैसे शाह साहब ने आप फरमाया कि पाकिस्तान हमारा मोहसिन मुल्क है, हम पाकिस्तान के लिए इंफरादी तौर भी, इज्तिमाई तौर भी दुआएं मांगते रहते हैं कि बारिलाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता कर और पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं उन मसाइल से उसको आज़ाद कर और पाकिस्तान एक ऐसी ममलकत बने जिस ममलकत में अदल हो, इंसाफ हो और तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए मसावात हो और यकसां तो उनके साथ सलूक बढ़ता जाए। हिंदुस्तान में कभी कत्ल गारदगरी हो उसका भी हमें बहुत दुख पहुंचता है। मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ जहाँ भी ज्यादतियाँ होती हैं उनके खिलाफ हम हैं। हम इंसानियत को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इस बात को आप हमारी तरफ से पूरी दुनिया तक पहुँचाइए। हम सबसे ज़्यादा इंसानियत का एहतराम करते हैं, इंसान की कद्र मंजिलत हमारे पेश नज़र है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। इसलिए हम हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो, जहाँ भी इंसानों की कत्ल गारदगरी का बाजार गर्म किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। चाहे वो अरब में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे तुर्की में हो, चाहे किसी और मुल्क में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, जहाँ भी इंसानी खून बहाया जाए उसकी हम मजम्मत करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम पूरी इंसानी समाज को हम यकजा देखना चाहते हैं, उनके साथ अदल होना चाहिए। हम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं
हम उनको उन तक भी ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि वहाँ ईसाइयों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। वहाँ किसी सिख भाई के साथ, किसी हिंदू भाई के साथ और किसी भी, चाहे वो अहमदी हो या किसी और एतकाद का मालिक हो, उसका पैरोकार हो, उन सब के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। इसी तरह हम भारत को भी, हम भारत के जो 1 अरब से ज़्यादा अवाम हैं, वो इंसानी रिश्ते के हमारे भाई हैं। हम बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये बात पहुंचा देना चाहते हैं पूरी दुनिया तक, भारत के अवाम तक, दुनिया के अवाम तक। हमें भारत के साथ कोई लड़ाई नहीं है, भारत के अवाम के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हम भारत के अवाम को इंसानी रिश्ते के भाई बहन समझते हैं। हम उनके जानों और मालों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान, भारत में और पाकिस्तान के दरमियान और ख़ासतौर जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान जो तनाव है, जो टकराव है, जो कशमकश है और जो खूनरेजियाँ हो रही हैं, 47 से लेकर आज तक यहाँ 6 लाख जवानों की कुर्बानियाँ दी जा चुकी हैं, 6 लाख इंसानों की। यहाँ 10,000 लोगों को गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया है। यहाँ 6,000 से ज़्यादा ख़वातीन की इज्जतें और असमतें लूटी गई हैं। यहाँ 7,600 कब्रें ऐसी हैं जिनके बारे में मालूम ही नहीं है इनमें किन लोगों को दफन किया गया है। इतनी अजीम कुर्बानियाँ देने के बाद अगर कोई ये समझता है कि सड़कें बनाकर हम जम्मू कश्मीर के अवाम को गुलामी में जकड़े रखेंगे, ये उनकी बहुत खुशफहमी है, गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला जो है ये मुतनाज़ मसला है और इसको हक़ खुदराजत की बुनियाद पर यहाँ के 1 करोड़ 30 लाख अवाम को अपना हक इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान गुज़श्ता 67 साल से अपनी ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों के जज्बात को कर्ब करना चाहता है, मसल करना चाहता है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी और मैं यहाँ की नाम निहाद हुकूमत जिसको बहरहाल जिसके जो नई बनी है, इससे पहले भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का 6 साल का इक़्तिदार था, उसमें भी यहाँ खून बहा है। उन्होंने भी मजालिम ढहाए हैं। वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी बराबर मुजरिम है, वो भी यहाँ के लोगों के दुश्मन हैं। उन्होंने भी 2010 में यहाँ 125 हमारे टीनएजर्स को उनका खून बहाया बेदर्दी के साथ, और अब तक उनके जो कातिल हैं पुलिस और CRPF, उनमें से किसी को कोई सज़ा नहीं दी जा रही है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ के नाम नहाद वज़ीर आला जो अपने आप को वज़ीर आला कह रहे हैं, बहरहाल वज़ीर आला को हम ये बात पहुँचा देना चाहते हैं कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पॉलिसी की पैरवी करते हुए यहाँ जो आज़ादी पसंद क़यादत है उनके लिए आपने स्पेस ख़त्म की है, उनको घरों में नज़रबंद रखा जा रहा है। मुझे 17 अप्रैल से आज तक मुसलसल घर में नज़रबंद रखा गया है। शाह साहब हों, नईम साहब हों, दूसरे लोग हों, इनको मुसलसल बंद रखा जा रहा है। हमें लोगों तक पहुंचने का मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें जवानों से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है, हमें ईद नमाज की भी इजाज़त नहीं दी। मैं उनको मुतनब्बह करना चाह रहा हूँ कि आपका ये तर्ज अमल, आपकी ये पॉलिसी, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बहुत गंभीर नताइज निकलेंगे। जो पॉलिसी आपने इख्तियार की है, हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हमें आवाम तक पहुँचने का मौका दिया जाना चाहिए, हमें अपने दीनी फ़राइज़ अंजाम देने का मौका दिया जाना चाहिए। आपके लिए कोई जवाज़ नहीं है, कोई अखलाकी जवाज़, कोई इंसानी जवाज़, कोई कानूनी जवाज़ और कोई भी जमहूरी जवाज़
आपके पास नहीं है कि आप हमारी नजरबंदियों को तूल दे रहे हैं, हमें घरों में बंद रख रहे हैं, जेलों में सड़ा रहे हैं और पुलिस थानों में हमारे जवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि इसके बहुत गंभीर नताइज निकलेंगे और फिर ना आपके हाथ आसमान तक पहुंचेंगे और न जमीन तक आपके पाँव ठहरेंगे। ऐसे भयानक नताइज सामने आएंगे अगर आपने ये बर्बरियत, सफाकियत, जब्बारियत और फस्तायत और अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड इसको जारी रखा। तो इस तरह मैं आपको आपका दिल की अमीर गहराई के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उसका तो हमने गुज़श्ता 67 साल से तजुर्बा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, आज़ादी पसंद लोगों को ट्रेटर्स कहते हैं और उनको क्या हिंदी में क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं और दूसरे इल्ज़ामात दे रहे हैं। मैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि आपका ये तर्ज अमल इंसानी कदरों के खिलाफ है, आपका ये तर्ज अमल अखलाकी कदरों के खिलाफ है, आपका ये तर्ज अमल आपके उस बापू के प्रोग्राम, उसकी पॉलिसी के खिलाफ है जिसको आप बापू के नाम से पुकारते हो। ये सब कुछ आपकी ज़हनियत, आपकी बीमार ज़हनियत का नतीजा है जो आप जम्मू कश्मीर के मीडिया के साथ या यहाँ के आज़ादी पसंद क़यादत के साथ या यहाँ के अवाम के साथ जो आप रवा रख रहे हैं, और ये भी आपके लिए कोई अच्छे नताइज फराहम नहीं करेगा। आपको याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग 1,30,00,000 लोग, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे हिंदू हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे कोई और हो, सब हम एक ही वतन के रहने वाले, हम आपस में भाई भाई हैं और हम इस रिश्ते को, इंसानी रिश्ते को, हमसायगी के रिश्ते को, बरादरी के रिश्ते को हर कीमत पर इंशाअल्लाह इसको महफूज और मसून रखेंगे। और मैं आपकी वसातत से अपनी मजलूम कौम को भी और पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूँ कि हमारी जुद्दोजहद मुक़द्दस जुद्दोजहद है, ये जारी और सारी रहेगी और यकीनन हम इंशाअल्लाह भारत के जबरी और फौजी और नाजायज़ कब्जे के खिलाफ आज़ादी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह।